السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ میڈیا کی سرخیوں میں چھائے دواخانے عثمانیہ کا ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کیا دورہ، عارضی طور پر مسئلے کو جلد حل کرنے کی دی ہدایت۔ ریاستی حکومت اور محکمہ صحت سرکاری دواخانوں میں جاری لاپرواہی کی ذمہ دار، دواخانے عثمانیہ کی حالت زار پر اپوزیشن قائدین نے حکمران جماعت اور وزیر اعلیٰ کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ ساؤتھ زون میں اینٹیجن ٹیسٹنگ سینٹرز میں مزید اضافہ کیا جائے، مجلسی اراکین اسمبلی کے وفد نے ریاستی وزیر صحت سے کی نمائندگی۔ مہلک کورونا سے نمٹنے میں ٹی آر ایس حکومت اور وزیر اعلیٰ کے سی آر ناکام، کورونا فرنٹ والی سہولتوں سے محروم، کانگریس قائدین کی تنقید۔ کورونا سے جنگ کے بعد واپس ہوئے پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی، سی اے آر ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ تقریب میں کمشنر پولیس انجنی کمار نے کی شرکت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ حکومت محکمہ صحت کے تحت چلائے جا رہے دواخانہ عثمانیہ میں بارش اور ڈرینیج ابلنے کی وجہ سے چہارشنبے کو کئی اہم وارڈز میں پانی داخل ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں اطلاع ملتے ہی محکمہ صحت کے حکام حرکت میں آ گئے اور میڈیا میں یہ خبر وائرل ہونے کے بعد ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے عثمانیہ دواخانہ پہنچ کر مذکورہ مسئلے کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ نے انہیں تفصیلات سے واقف کروایا، جبکہ متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو انہوں نے ہدایت دی کہ عارضی طور پر اس مسئلے کا حل نکالا جائے، جس کے بعد مستقل طور پر اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو فوری رپورٹ کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ارے اپنا تنگ کر دیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ پرگتی بھون میں منعقدہ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے سی آر نے تعلیمی سال 2020-2021 کے سالانہ امتحانات کی تواریخ، نصاب کی تکمیل و دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا۔ واضح ہے کہ کئی خانگی اداروں کی جانب سے ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے سلسلے میں آن لائن کلاسز کو باقاعدہ بنانے کے لیے نمائندگیاں کی گئی تھیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے بھی دواخانہ عثمانیہ پہنچ کر تفصیلی معائنہ کیا اور انتظامیہ سے تفصیلات بھی حاصل کی۔ صدر پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے کانگریس قائدین کے ہمراہ دواخانے کا معائنہ کیا اور اس اہم دواخانے میں بارش کے موقع پر پانی داخل ہونے پر ٹی آر ایس حکومت اور وزیر اعلیٰ پر شدید تنقید کی۔ بی جے پی ریاستی صدر بنڈی سنجے نے بی جے پی قائدین کے ایک وفد کے ہمراہ دواخانہ عثمانیہ پہنچ کر معائنہ کیا اور انتظامیہ سے بھی بات کی۔ واضح ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی قائد مرزا احمد بیگ نے چہارشنبے ہی کو عثمانیہ دواخانے کا معائنہ کرتے ہوئے پانی کی نکاسی کے سلسلے میں نمائندگی کی تھی۔ واضح ہے کہ بارش کے باعث دواخانے میں ہوئی صورتحال سے تلنگانہ حکومت اور محکمہ صحت تنقیدوں کی زد میں ہے۔
సమయంలో ఇంత సీరియస్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ జరుగుతున్న సమయంలో ఉస్మానియా హాస్పిటల్లోకి వర్షపు నీరు వచ్చి పేషెంట్లు బెడ్ మీద వార్డులలో కింద నీళ్లు చూసి మేము నిర్ఘాంతపోయినాం. కేసీఆర్ గారు సిగ్గుతో తల వంచుకోవాలి. ఇది వారి అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీరుకి, వారి ప్రభుత్వ తీరుకి ఇది నిదర్శనం అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुखन्ना पर मुश्तमिल वफद ने वज़ीर सेहत ई राजेंद्र से मुलाकात करते हुए जनूबी शहर में मज़ीद कोविड-19 एंटीजन टेस्टिंग सेंटर्स में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की है। वफद में मजलिसी अरकान मुखन्ना सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मोहम्मद मुमताज़ अहमद ख़ान, अहमद बलाला, मोहम्मद मौज़म ख़ान, जाफ़र हुसैन मेराज और कौसर मुहिउद्दीन भी शामिल थे। वज़ीर सेहत ने मुलाकात के बाद रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि तमाम अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्क़े जात में कोविड एंटीजन टेस्ट के मराकिज़ से मुताल्लिक़ इलाक़ों की निशानदेही करते हुए मकतूब हवाले किए हैं। रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने भी बताया कि नामपल्ली हल्क़े में कोविड टेस्ट मराकिज़ के लिए वज़ीर सेहत से नुमाइंदगी की गई है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, जनाब मौज़म ख़ान साहब, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब और मैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज हेल्थ मिनिस्टर जनाब इटला राजेंद्र साहब से मुलाकात किए। तमाम असम्बली हल्क़े जात में जो कोरोना के सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं टेस्टिंग के, वो कायम करने के लिए अपने अपने हलक़े के लेटर्स हवाले किए निशानदेही के साथ, और दीगर इलाक़ों के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो टेस्ट हो रहे हैं एंटीजन के, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मराकज़ कायम करने पर आवाम को सहूलत होगी। आवाम को मुसलसिल राग़िब किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, MLAs, सुदूर मुतमद्दिन तमाम आवाम के दरमियान रह के उनके टेस्टां करा रहे हैं, और मुतअद्दिद मरतबा आवाम से अपील की जा रही है कि आप इस वायरस से घबराएं मत, अपने अपने टेस्टां करा लें, और टेस्टां कराने के बाद इत्मीनान के साथ रह सकते हैं। और एहतियाती तदाबीर जो है वो टेस्टां कराने के बाद भी और नेगेटिव आने के बाद भी, आने से पहले भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। सदर मजलिस ने परसों ही ऑनलाइन कॉरपोरेटर्स की मीटिंग में वाज़े तौर पर यह ऐलान किया कि हमको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने इलाक़ों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत की तरफ से ये सेंटर्स, टेस्टिंग के सेंटर कायम किए जा रहे हैं। आप वहाँ पर अपने मुआयने कराइए, टेस्टां करा लीजिए, और अपने ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अपने घर वालों का, बाल बच्चों का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, अहलियान मोहल्ला का और शहर हैदराबाद के तमाम आवाम के लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे इक़दाम बेहद ज़रूरी है। इसलिए मेरी अपील है कि आज जिन इलाक़ों की फहरिस्त मिनिस्टर साहब को हमने दी है, सदर साहब की हिदायत पर हर असम्बली हल्के में कम अज़ कम कॉरपोरेटर्स के एरिए में एक और बाद बड़े एरिए है तो वहाँ पर 2 इस नौइयत के सेंटर्स कायम करने के लिए मुरासिले दिए हैं। इंशाअल्लाह मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द हम इंतजाम करेंगे, उन सेंटर्स का आगाज़ करेंगे। इससे हट के भी आवाम से आपके चैनल के ज़रिए अपील की जाती है कि एहतियात से काम लें। आने वाले 15 दिन बहुत इम्तिहान के दिन हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम सब्र करें। इंशाअल्लाह अनक़रीब इस वायरस का ख़ात्मा होगा और हैदराबाद नहीं पूरी दुनिया के लोग चैन की ज़िंदगी गुजारेंगे इस वायरस के ख़ात्मे के बाद। और हर एक के लिए ज़रूरी है कि टेस्ट करा ले और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने अफराद ख़ानदान का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, कमसिन बच्चों का, सबका टेस्ट करा के आप इत्मीनान हासिल कर रहे। शुक्रिया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान असम्बली आज हेल्थ मिनिस्टर जनाब इटला राजेंद्र साहब से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि
अपने अपने एरियाओं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सेंटर डालने के लिए नुमाइंदगी की। इसके अलावा जो आज कोविड-19 की तरफ से जो पेशेंट्स परेशान हैं उनको इमीडिएट कौन कौन से हॉस्पिटल में रखना है और हॉस्पिटल्स में क्या क्या सहूलतें देना है उस ताल्लुक़ से भी बात किया गया। एक अहम बात ये करे हैं कि जो गांधी हॉस्पिटल के अंदर जो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर स्टाफ स्ट्राइक कर रहा है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करवा के वहाँ पे भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराना। चूँकि पॉजिटिव जब किसी की रिपोर्ट आती है तो इमीडिएट गांधी हॉस्पिटल को रुजू किया जाता है और गांधी हॉस्पिटल के अंदर सहूलतें बराबर नहीं रहने की तरफ से आवाम घबरा रही है। इस ताल्लुक़ से ख़ास दिलचस्पी के लिए हेल्थ मिनिस्टर साहब को कहा गया है और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दिया है कि बेशक उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको दूर करके गांधी हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। और एक अहम मसला ये था कि जो उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर पिछले 2 दिन से बारिश होने की तरफ से हॉस्पिटल की जो पुरानी बिल्डिंग है जिसमें पूरा पानी यहाँ तक के वार्डों के अंदर पानी आ गया है, इसके ऊपर नकीब मिल्लत की तरफ से ख़ास तवज्जो की तरफ से अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब को ये इंसिस्ट किया गया है फौरी आप उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा करें और दौरा करने के बाद उस्मानिया हॉस्पिटल का जो मसला है जल्द से जल्द उसको हल करने के लिए ख़ास तौर से तमाम MLA हजरात ने उसके ऊपर रोशनी डाली है। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दिया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे नाजुक दौर के अंदर जो कोविड-19 कोरोना वायरस से जो अवाम परेशान है, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करे और हम लोग मुमकिन जितना भी हो सकती कोशिश कर रहे हैं और इनसे नुमाइंदगी करे हैं। एरिया के अंदर कुछ आइसोलेशन सेंटर को बढ़ाया जाए, जैसा 4 मीनार दवाखाना है, मज़ीद और दवाखानों के लिए भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक प्लान लेकर आएंगे और आवाम की सहूलत के लिए जितना बेहतर हो सकता उसको कराएंगे। एक अहम मसला ये भी था जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बिलों का जो मसला था उसके ऊपर भी हमने हेल्थ मिनिस्टर साहब को रोशनी डाली है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दिया है कि ऐसे कोई भी अगर चीज़ रहेंगे तो उन्हें देखेंगे, वेरीफाई करके उन लोग के ऊपर एक्शन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत तेलंगाना खासकर GHMC हदूद में कोरोना मुस्बित केसेस में बदस्तूर जारी इजाफे के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आला तेलंगाना KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में कांग्रेस सीनियर कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला KCR को सिर्फ अपना ख़जाना भरने की फ़िक्र है और आवाम की सेहत के सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुस्बित केसेस में इजाफे के बावजूद लॉकडाउन के बारे में भी गौर नहीं किया जा रहा। कोरोना को लेकर आवाम में खौफ पाया जाता है, लेकिन KCR को सिर्फ आबपाशी प्रोजेक्ट से ही दिलचस्पी है। नए सेक्रेटरीट की फिक्र है, लेकिन सेहत आमा के सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। వాళ్ళ పిల్లల పరిస్థితి ఏంది, క్లాసుల పరిస్థితి ఏంది, ఒక రివ్యూ చేసి అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతోంది వాళ్ళకి, మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది, అసలు స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తామా, స్టార్ట్ చేయకపోతే ఏంది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాము, ఏమి యాక్షన్ ప్లాన్ లేదు. మనకల్లా కావాల్సిందల్లా ఒక్కటే, వచ్చే రెవెన్యూ, మద్యాల అమ్మకం, దాని ద్వారా వచ్చే రెవెన్యూ తెచ్చుకోవడానికి అప్పులు ఏ పరిస్థితి, ఎక్కడెక్కడ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉందో దాని మీద, లేకపోతే ఇంకా పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటే ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేయటం, వీటన్నిటిని తెచ్చుకొని మనకు కావాల్సినటువంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల పేరు మీదనో ఇంకో దాని పేరు మీదనో డబ్బులు రిలీజ్ చేయటం, సెక్రటేరియట్లో బ్రహ్మాండంగా బిల్డింగ్లు కూల్చడం, దాని మీద డబ్బులు రిలీజ్ చేయటం. कांग्रेस सीनियर कायद रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने नर्सिंग स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात को पूरा करने के सिलसिले में किए जा रहे धरने और हड़ताल को लेकर TRS हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से निपटने में फ्रंट वॉरियर्स का रोल निभाने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को हुकूमत सहूलतें फराहम करने में नाकाम है। रियासत बिलखुसूस GHMC हदूद में कोरोना मुस्बित केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है, लेकिन महकूम सेहत और TRS हुकूमत ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं। उन्होंने बताया कि कई मसाइल के सिलसिले में वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र के बयानात में तज़ाद पाया जाता है और ऐसे में किसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నామని ప్రజలకు భరోసా కల్పించటం లేదు. ఈరోజు యావత్ రాష్ట్రంలో
ప్రతి కుటుంబానికి సంబంధించిన ప్రతి వ్యక్తి భయాందోళనతో ఉన్నాడు. ఆ సందర్భంలో ప్రభుత్వం చేయాల్సిన ప్రధానమైన కర్తవ్యం, ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు, ఇతర పెద్దలందరూ కూడా ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న పాండమిక్కు సంబంధించిన అంశము మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఎవరికైనా ఈ వ్యాధి సోకితే మేము रैन बाजार डिवीजन के इलाके याखुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब बारिश होने के बाद हमेशा पानी जमा होता है, जिसकी नक्काशी एक मसला बनी हुई है। इस सिलसिले में मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की हिदायत के बाद GHMC की जानिब से काम का आगाज़ हुआ। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने GHMC के अहदेदारों के हमरा मज़कूरा काम के सिलसिले में मुआयना करते हुए मुफीद मशवरे भी दिए। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी के हमरा मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर वाजिद अली खान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर महिउद्दीन ने हकीम पेट टोली चौकी में बस्ती दवाखाने में एंटीजन टेस्टिंग के अमल का आगाज़ किया। इस मौके पर उनके हमरा नानल नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली ने अपना एंटीजन टेस्ट भी करवाया, जो कि नेगेटिव रहा। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ बस्ती दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर आवाम की सहूलत के लिए एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है। सियासी कायदीन ने आवाम से अपील की है कि वो मज़कूरा सेंटर से इस्तिफ़ादा करें और अपनी टेस्टिंग को यकीनी बनाएं। सदर मोहतरम की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम MLAs आज हेल्थ मिनिस्टर साहब से सुबह में मीटिंग तलब की गई, जिसके अंदर जो कोविड-19 के ताल्लुक से और दीगर जो आवाम के अंदर जो मसाइल चल रहे, जो आवाम जो परेशानी का सामना कर रही है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीजन महमूद सोहेल कादरी ने चार मीनार दवाखाने का दौरा करते हुए यहाँ के कामों के सिलसिले में कमिश्नर आयुष से नुमाइंदगी की। इस मौके पर मजलिसी कायद सैयद अमीनुल हसन जाफरी भी दवाखाना पहुँचे थे, जिन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, जो मनफी रहा। कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी के मुताबिक चार मीनार दवाखाने को एक मरतबा फिर आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में कुछ कामों की उन्होंने निशानदेही की है। आप नोट करो भाई, फोन है, आप नोट करिए जो जो काम है, क्योंकि अब अगर कोविड के पेशेंट गीजर ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ गीजर नहीं है, मेल वार्ड में वार्ड 3 है, ये वार्ड 3 में अपने गीजर नहीं है, प्लस वॉशरूम के अंदर आज यूनानी हॉस्पिटल का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे मैंने यहाँ पर दौरा किया हूँ। यहाँ पर आयुष की जो कमिश्नर है मोहतरमा वर्षनी मैडम से कल भी बात हुई थी। उन्होंने ख्याल ज़ाहिर की कि यहाँ पर पेशेंट्स आने वाले हैं, और आज सुबह भी मेरे से बात हुई थी। तो मोहतरमा डॉक्टर कविता सुपरिटेंडेंट यूनानी हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है। यहाँ पर कोविड के जो पेशेंट्स आने वाले हैं यहाँ पर, उस सिलसिले में यहाँ पर जो खामियां हैं, यहाँ पर जो चीज़ की कमी है, मैडम ने कहा कि यहाँ पर कोई चीज़ की भी अगर कमी है आप मेरे को इन्फॉर्म करिए, हम यहाँ पर काम इमीडिएट करवाएंगे। लॉकडाउन में इससे पहले जो लोग यहाँ क्वारंटाइन थे यहाँ पर, तो उनके लिए जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मैं ही यहाँ पर आए पर्सनल आके यहाँ दौरा करके
यहाँ पर लाइट का बड़ा मसला था, यहाँ इलेक्ट्रिकल का। यहाँ नए ट्यूबलाइट्स और फ़ैन बिल्कुल नहीं के बराबर थे। मुमताज़ अहमद ख़ान साहब खुद दुकान खुलवा के यहाँ लाए थे। यहाँ पर थोड़ा काम खुद करवा है। यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट साहब थे और प्रिंसिपल साहब थे वो काम हुआ है। मगर यहाँ पर सबसे अहम मोहतरमा सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कविता यहाँ पर मौजूद है और ये भी कह रहे हैं कि ये पुरानी बिल्डिंग में यूनानी की करीब 190 बेड्स है यहाँ पर, और 190 बेड्स में मैं समझता हूँ 20 से 25 टॉयलेट है, और 20 से 25 टॉयलेट में 1 या 2 या मैं समझता हूँ 3 टॉयलेट जो काम कर सकते हैं। बाकी का कोई टॉयलेट में सही टैप नहीं लगे हुए हैं, पानी का मसला है। और मैडम ने कहा है कि जो चीज़ की यहाँ ज़रूरत है हम अच्छे से अच्छा करेंगे। तो मैं यहाँ पर दौरा करने के बाद एक ये देखा हूँ कि यहाँ पर प्लम्बिंग का काम बहुत है, यहाँ पर वॉशरूम्स की कमी है यहाँ पर। तो मैं मोहतरमा डॉक्टर कविता से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैडम आप ख़ुद देखें, आपको भी अफसोस हुआ यहाँ पर कि वॉशरूम सही नहीं है। और अहम मसला ये है कि बहुत सारे ज़ईफ़ लोग भी आएंगे यहाँ पर पेशेंट्स में। पूरे 190 अगर पेशेंट्स यहाँ रहेंगे तो 2 गीज़र है, सिर्फ 2 गीज़र है जो एक काम नहीं कर रहा। एक को उसको कनेक्शन देने का है भी, पानी का भी उसमें। तो मेरी आपसे और मोहतरमा तेलंगाना हुकूमत ने 15 IAS ओहदेदारों के तबादले कर दिए हैं। दिल्ली तेलंगाना भवन के OSD की हैसियत से सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी का तबादला करते हुए उन्हें महकमे सेहत का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। आदिलाबाद कलेक्टर श्री देविया सिन्हा का तबादला करते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मुकर्रर किया गया है, जबकि उनकी जगह पटनायक को आदिलाबाद का कलेक्टर बनाया गया है। दीगर ओहदेदारों में आधार सिन्हा, शांति कुमार, योगिता राणा और दूसरे शामिल हैं जिनका तबादला किया गया है। बुधा प्रकाश का एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ओहदे पर तबादला किया गया है, जबकि रानी कमोदनी को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी LET मुकर्रर किया गया है। रजत कुमार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे आबपाशी मुकर्रर किया गया है। V करोना को कमिश्नर पब्लिक हेल्थ और फैमिली वेलफेयर शोबे में तबादला किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के तनाजुर में महकमे सेहत की कारकर्दगी पर हो रही तनकीदों के तनाजुर में ये तबादले किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हुई है, और बारिश की वजह से जहां कमी देखी गई वहीं नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए, जबकि आवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। अलावाज़ी बाज़ फसलों को भी नुकसान पहुँचने की इत्तलात मिली है। कोरोना से सेहतयाब होकर पुलिस मुलाजमीन की खिदमात पर रुजू होने का सिलसिला जारी है। जुमेरात को भी तकरीबन 62 पुलिस मुलाजमीन खिदमात पर रुजू हुई, और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने खिदमात पर रुजू होने वाले पुलिस मुलाजमीन का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजमीन ने जुरातमंदी के साथ कोरोना का मुकाबला किया और उसे शिकस्त देकर खिदमात पर दोबारा रुजू हुए हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो पुलिस मुलाजमीन के अफराद ख़ानदान को सलाम करते हैं कि उन्होंने इन हालात में मुलाजमीन का साथ दिया। इस मौके पर सेहतयाब होने वाले पुलिस मुलाजमीन को तौसीफ़नामे भी हवाले किए गए। चंद्रकांत वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में होम आइसोलेशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई। वाज़ेह है कि ऐसे अफराद जिनके एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आए हैं उन्हें GHMC की जानिब से होम आइसोलेशन किट्स की फरहमी अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर बल्दी ओहदेदारान भी मौजूद थे। टैबलेट वगैरह पूरा चेकअप
काला पत्थर पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन हदूद के राउडी शीटर्स की एक मुकामी फंक्शन हॉल में काउंसलिंग की गई। सर्कल इंस्पेक्टर काला पत्थर सुदर्शन ने मस्कुरा प्रोग्राम की निगरानी की, जबकि बास मसाजिद के आइमा कराम को भी मदऊ किया गया था ताकि वो कुरान की आयतों का हवाला देते हुए राउडी शीटर्स को अपने तौर पर वाज व नसीहत कर सकें। इस मौके पर राउडी शीटर्स में कुरान में तर्जुमा भी तोहफतन दी गई। इस काउंसलिंग सेशन के बाद सर्कल इंस्पेक्टर ने रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे से खुसूसी बात भी की। आज काला पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 65 राउडी शीटर्स है। ये लोगों को टायर फंक्शन हॉल में काउंसलिंग करा। ये काउंसलिंग हम एवरी मंथ पुलिस स्टेशन में बुला के काउंसलिंग करते हैं, दस्तखत लेते हैं, एवरी डे एंड नाइट चेकिंग करते हैं। मगर आज का इम्पॉर्टेंट क्या है बोले तो 1 साल से हमारा राउडी शीटर कोई क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई मर्डर केस और 307 में भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। उस वजह से वो लोग और आगे अच्छा रहने के वास्ते लोकल सोशल वर्कर्स रिजर्व और एजाज भाई और ये हमारा फतेह दरवाज़ा इमाम साहब, रंजन कॉलोनी इमाम साहब, इंजन बोली इमाम साहब, ये लोगों को बुला के कुरान में क्या ख़त्म करे तो क्या गुनाह है वो हिसाब से पूरा वो लोगों को पढ़ के अच्छा कलमा उसमें कुरान से निकाल के इसमें 4 निकाला, उसमें ख़त्म करना गुनाह है और आयत के हिसाब से एक 5 रेफरेंस पॉइंट भी दे दिया पॉम्पलेट में। और शराब पीना भी गुनाह है, उसमें भी एक 4 आयत में क्या है बोल के वो दे भी दिया। और चोरी करना भी गुनाह है, उसमें भी आयत हिसाब से 4 पॉइंट्स ये कर दिया। और माँ बाप को भी अच्छा देख लेना, वो लोगों को सताना नहीं, वो लोगों से खिदमत। हयातनगर पुलिस ने 45 साला शख्स के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए इस केस को हल किया। पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई को 45 साला मोहम्मद गौस का कत्ल किया गया था। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया और कत्ल में मुलविस 24 साला समीर और 31 साला जिलानी रहमान को हिरासत में लेते हुए उनके कब्ज़े से कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार को ज़ब्त किया गया। बाद अज़ां उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मीडिया की सुर्खियों में छाए दवाखाने उस्मानिया का रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने किया दौरा, आर्जी तौर पर मसले को जल्द हल करने की दी हिदायत। रियासती हुकूमत और महकमे सेहत सरकारी दवाखानों में जारी लापरवाही की जिम्मेदार, दवाखाने उस्मानिया की हालत ज़ार पर अपोजिशन कायदीन ने हुक्मरान जमात और वज़ीर आला को बनाया तनकीद का निशाना। साउथ जोन में एंटीजन टेस्टिंग सेंटर्स में मजीद इजाफा किया जाए, मजलिसी अराकीन असम्बली के वफद ने रियासती वज़ीर सेहत से की नुमाइंदगी। मोहलिक कोरोना से निपटने में टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर नाकाम, कोरोना फ्रंट वाली सहूलतों से महरूम, कांग्रेस कायदीन की तनकीद। कोरोना से जंग के बाद वापस हुए पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई, सीएआर हेडक्वार्टर में मुनक़िदा तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने की शिरकत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।